हाँ नमस्कार. Hello everybody, the Drishti partners. I am Pramod Deshmukh from Sanskriti Samvardhan Mandal, Sagaroli district, Nanded, Maharashtra. SSM is partnering with Drishti HRC since 2005. Uh, Actually, I would have more interested to join this workshop after this 2 3 years pandemic, but as I'm leaving today to attend or participate in a international agri-tourism conference scheduled at organized by the Vermont University in Burlington, USA. So sorry for that. I could not meet you all people. Uh, बट मुझे जो सब्जेक्ट दिया है आपके साथ डिस्कस करने के लिए कि वैसे आई एम इन दिस फील्ड सिंस 1985-86. Actually, the Sanskriti Samvardhan Mandal established by my father, Keshav Narayan Deshmukh, in 1959. He donated his own land of 200 acres and established this organization. The major reason behind this was uh, his daughter's, that is my eldest sister, education after fourth class. So worried about her education, he started the school. Now started with merely some 36 or 40 students. Now it's one of the largest rural residential schools in the region, accommodating about the 4,000 uh, students. And about 1,500 students reside in the campus only in various hostels. Many of them are government aided, or rest of them are paid by the students themselves. Now, Kushal asked me to tell my experience, how the challenges have the changed, or the scenario has changed since 1985 or earlier than that, and the today. So मुझे एक ऐसा लगता है कि when I entered in 1985 in the organization, the my focus was only on the school education. Slowly, gradually, the लोगों के नीड्स बढ़ते गए, लोग आते गए, मिलते गए, और जो भी नीड्स सरफेस होती गई, तो ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ काम करती गई. एंड द ऑर्गेनाइजेशन एंटर्ड इन द मेनी अदर सोशल फील्ड्स besides the education. Still, the education, particularly the girls' education, is the nucleus activity of organization for the past 65 years. बट बाकी दूसरे फील्ड्स में भी ऑर्गेनाइजेशन उतना ही इफ़िशेंटली काम कर रही है. मगर एक फ़र्क जो मैं देखता हूँ कि पहले जो था, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में देयर वेर मेनी वॉलंटियर्स इन द ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट. They work voluntarily, like the secretary, treasurer, and other people, many key people. They were all voluntarily, they were doing that work. But now most of them are either paid in the organization, or somewhere they are government employees or like that. uh, एक अभी भी आज भी वॉलंटियर्स वैसे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, स्किल डेवलपमेंट में एक काम करते हैं, आते हैं. मगर जो एक रेशियो था पहले, उससे थोड़ा सा मुझे लगता है कि वॉलंटियर्स का काम थोड़ा सा परसेंटेज कम हुआ है. और पूर्वी पहले जो था, my organization was focused and only working in the girls, particularly girls education. School education was the focus. Now the organization has grown into a multifaceted activities like watershed development, rural low-cost social housing, then environment, skill development, sports, many, really many, many.
पीपल लोग आते गए और जैसा कि ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती गई, स्टाफ बढ़ते गया और एक जैसा कि एक पहले मैं देखता था 30-40 साल पहले कि एक जैसा एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक फैमिली जैसा एक स्ट्रक्चर था। नाउ स्टाफ तो बहुत बढ़ गया है, एक करीबन आई थिंक वी हैव नाउ द स्टाफ मोर देन 400 प्लस स्टाफ इज देयर एंड एक थोड़ा सा मुझे भी पर्सनली अच्छा नहीं लगता बट नाउ वी हैव लाइक समथिंग लाइक अ कारपोरेट लुक। थोड़ा सा कभी कभी लगता है कि हम गवर्नमेंट और CSR के सब कॉन्ट्रैक्टर हो गए हैं। आई एम सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड बट ऐसा लगता है मुझे पर्सनली। और पहले जो था जब 80-85 में मैं वाटरशेड एज एन ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर आई स्टार्टेड माय कंट्रीब्यूशन इन SSM विथ वाटरशेड डेवलपमेंट। सो पहले तो लोग जब हम बोलते थे उनको 20% 20% कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन ओन कंट्रीब्यूशन इज नेसेसरी, तो लोग करते थे। वो करते करते 20% से भी ज़्यादा कभी कभी 30% भी होता था। बट नॉट पीपल नेवर दे केयर अबाउट और आस्क अबाउट दैट। और इवन कभी हम जो रूरल हाउसिंग लो कॉस्ट हाउसिंग की प्रोजेक्ट करते थे तो उसमें से तो लोग इतना इंटरेस्ट में आते थे कि 50% तक लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते थे। आज तो वाटरशेड डेवलपमेंट में मैं देखता हूँ कि वेरी कम पीपल, वेरी वेरी रेयर, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर लोगों का कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन रहा है। वैसे एक हाउसिंग वगैरह इसमें तो रहता है क्योंकि उनके थोड़ा सा हाउसिंग का एक थोड़ा सा एक उनके लोगों को एक दे आर मोर दे बिकम सेंटिमेंटल। मगर श्रमदान की लोगों की काम करने की जो एक ये होती है वो कम हो गई है लोगों की श्रमदान में। और थोड़ा सा पीपल आर हेजिटेंट इवन टू वर्क देयर इन देयर ओन फार्म आल्सो। तो जब हम 85 में काम करते थे तो हम वी जो नॉर्मली वी सिलेक्ट द कम्युनिटी लैंड, सो एवरीबडी कैन कंट्रीब्यूट विदाउट एनी हेजिटेंसी। मगर आज तो लोग कम्युनिटी लैंड पे भी नहीं, खुद के काम लैंड पे भी काम करने के लिए थोड़ा सा हेजिटेंट होते हैं क्योंकि जो एक डिग्निटी ऑफ लेबर होती है वो थोड़ा सा कहीं कम होती गई है, ऐसा मुझे लगता है। और इसके लिए गवर्नमेंट की जो एक ये है वेलफेयर स्टेट वाली जो एक कल्पना है कि अनेक गवर्नमेंट की जो बहुत से कुछ सोशल वेलफेयर की, लोगों के वेलफेयर के लिए की जो भी स्कीम्स चलती है, जैसा कि राशन दुकान है और सीनियर सिटीज़न की है, ट्रैवलिंग में कंसेशन है, तो लोगों की काम करने की आदत भी और ये कम होती जा रही है। समटाइम्स आई फील दैट द गवर्नमेंट इज़ किलिंग द मोटिवेशन टू वर्क, क्योंकि उनके पास अगर कोई मोटिवेशन नहीं पैसा कमाने के लिए तो लोग भी क्यों काम करेंगे, ऐसा मुझे कभी लगता है। और दूसरी एक बात मैं आई वुड लाइक टू शेयर दैट गवर्नमेंट का लीगल कंप्लायंस बहुत बहुत बढ़ गया है। लीगल compliance, I remember in my office only one person was taking care of all that income tax, then charity commissioner, सब जो भी कुछ कोर्ट मैटर्स हो उसके, FCRA के बारे में, सब वो अकाउंट्स के बारे में, CA को भी वही संभालता था, इंटरनल ऑडिट भी वही देखता था। मगर आज ये इसके लिए 5-6 लोगों की टीम हो गई है। तो इनकम टैक्स के यार इतना एक स्ट्रेस आ गया है कि कभी कभी लगता है एकदम अरे वो ATG का काम रह गया है, ये 35AC का काम, एक हमेशा एक स्ट्रेस बना हुआ होता है अकाउंट के टीम पर लीगल कंप्लायंस के बारे में। तो ये ज़्यादा थोड़ा सा
गवर्नमेंट की ऑन द फील्ड पे ज़्यादा कोई गवर्नमेंट उतना केयर नहीं करती कि जितना कि वो लोग लीगल कंप्लायंस में ज़्यादा उतना केयर करते हैं, पेपर वर्क पे ज़्यादा ये करते इम्पोर्टेंस देते हैं, ऐसा मुझे लगता है। पहले इतना पेपर वर्क का नहीं था, हम भी केयर नहीं करते थे उतना, थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन होता था मगर इतना डॉक्यूमेंटेशन भी ध्यान नहीं देते थे। काम करने की ज़्यादा ये होती थी। मगर थोड़ा सा ये पेपर वर्क ज़्यादा हो गया, दिखाऊ ये थोड़ा सा शो केसिंग ज़्यादा हो गया, ऐसा एक मुझे लगता है। एंड सीएसआर के बारे में भी मुझे ऐसा ही लगता है कि ये कारपोरेट सेक्टर भी उनका जो सीएसआर देती है 2%, दैट इज़ रियली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशंस हु आर बेस्ड इन वेरी स्मॉल विलेजेस एंड backward region like Marathwada, like SSM. मगर ये CSR भी दे कंसिडर देयर CSR एज अ बिजनेस प्लान, ऐसा मुझे लगता है। अगर हमारे लिए भी एक वो सोशल वर्क है, बट फॉर द कारपोरेट सेक्टर इट्स देयर बिजनेस प्लान। समझो कोई अगर एक बैंक है, अगर उनका CSR है तो ऑलवेज इट इज़ रिलेटेड विथ समथिंग, वो लोगों को लोन लेने के बारे में थोड़ा सा इनकरेज करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो उसमें भी वो लोग बिजनेस देखते हैं। और पहले और एक दूसरा एक प्रॉब्लम ऐसा आता है सीएसआर के काम करने के बारे में कि ऑलवेज दे डोनेट इन देयर ओन जुरिडिक्शन, देयर एरिया, देयर वर्क प्लेस। सो जो ऑर्गेनाइजेशंस हमारे जैसे काम कर रही कि जो वहाँ पर एग्रीकल्चर इज़ द ओनली सोर्स ऑफ फॉर द कम्युनिटी इनकम, मगर दूसरा कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, कारपोरेट नहीं है, तो हमारे लिए भी ये थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है। आजकल मैं एक सुन रहा हूँ कि एक जैसा कि एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऐसा कर रहा है, तो वैसा एक नेशनल सोशल स्टॉक एक्सचेंज ऐसा एक कुछ कंसेप्ट क्वाइन हो रही है, ऐसा भी दैट दैट विल बी गुड आई थिंक फॉर द एनजीओज। एंड डोनर्स जैसा कारपोरेट सेक्टर अपने CSR अपना जो 2% का CSR होता है वो बिजनेस के बारे में जैसा वेरी केयरिंग होती है, वैसे भी इंडिविजुअल डोनर भी दे आर इक्वली केयरफुल अबाउट देयर इन्वेस्टमेंट, देयर डोनेशन etc। एंड वो सोशल इम्पैक्ट वो लोग चाहते हैं, मगर वो ऑर्गेनाइजेशन के इससे ज़्यादा वो उनका जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट है उसमें ज़्यादा केयरफुल होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और थोड़ा सा उनका हेक्टिक शेड्यूल, बिजी शेड्यूल होने से भी आजकल के इससे वो विजिट भी इंडिविजुअल डोनर्स की थोड़ा सा कम होती जा रही है, ऐसा मुझे एक महसूस होता है। बस थोड़ा सा मगर फंडिंग तो एक कारपोरेट फंडिंग जो मैं आई रिमेंबर माय फादर यूज टू यूज द शबनम बैग and with the receipt book, always a receipt book in it with some brochures and other things, and whenever he travels uh, he always carries the receipt book and that annual report and the brochures। और वो 100 रुपये 10 रुपये से लेके वो डोनेशंस जमा करते थे, मगर आजकल ये इंटरनेट से और जो अलग अलग से कंसल्टेंसी उसमें आ रही है, तो एक फंड रेजिंग भी थोड़ा सा बहुत इजी हुआ है, ऐसा मुझे एक लगता है। एक कुछ ऐसे एक अच्छी बातें भी उसमें अरे वो भी मैं देख रहा हूँ, बट दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, दैट्स ऑल, थैंक यू।